Good morning, all students. So, moving further with our subject maths, let us start the chapter 5, the way the world looks. In this chapter, we will know that कौन से एंगल से कौन सी चीज़ कैसे दिखती है, how the thing will look from the different angle, and what are the shortest way and the longest way. So, let us start it. It's quite a logical chapter. Gappu's air journey. Gappu was a brave little mouse. One day he saw children playing with a huge gas balloon. The balloon went up and touched the roof. Gappu was thrilled. He got an idea. Next day, when the children went to school, Gappu climbed up the string of the balloon. He could see the blades of the fan from above. Oh, there is so much dirt on those blades. From below they look so clean. ये माउस है जिसका नाम गप्पू है, वो थोड़ा ब्रेव लिटिल माउस है. एक दिन उसने क्या किया कि बलून के ऊपर चढ़ गया. हम नीचे से देखते हैं तो फैन हमें कितना क्लीन दिखता है ना, उसके नीचे की सरफेसेस हमको दिखाई देती है. बट वंस मम्मी या कोई भी टेबल के ऊपर चढ़ता है या पंखे की हाइट से हम ऊपर चले जाते हैं, दैट टाइम वी कैन सी दैट जो ऊपर का सरफेस है उसके ऊपर कितना डर्ट है वो हमें तभी दिखाई देता है. तो जैसे ही माउस ऊपर चला गया उसको ऊपर की सरफेस के ऊपर की मिट्टी दिखाई देती है और वो बोलता है कि नीचे से फैन कितना क्लीन दिख रहा था, ऊपर से कितना डर्टी है. ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो. नीचे से फैन कैसा दिखता है वो आपको ड्रॉ करना है. गप्पू लुक्ड डाउन. He could see the bed, the chair, one table with books on it and the other table with a bottle, a jug, fruits, etc. Look for these things in the photo. जो गप्पू एयर साइड में दिखाई दे रहा है कि बलून के ऊपर लगा है, वो बलून पे चढ़ गया है डोरी पे, तो उसको डोर के हिसाब से क्या क्या चीज़ें नीचे दिखाई दे रही है. That stupid Chinky is looking for cheese. Can't even see it is kept on top of the jug. उसने देखा कि जग के ऊपर चीज रखा है जो चिंकी को नहीं मिल रहा है. Can you think why Gappu could see the cheese on the jug but Chinky could not? Yes, because चिंकी की नज़र होती है वो एक लेवल तक दिखाई देता है उसको और वो नीचे ढूंढ रही है, जबकि गप्पू ऊपर है तो ऊपर से सारी चीज़ें हमें क्लियरली दिखाई देती है. जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे सामने जो चीज़ होगी वो मुझे आराम से दिखाई देगी, पर मेरे आँखों के ऊपर के लेवल की होगी तो वो मुझे दिखाई देगी नहीं. उसके लिए या तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा या फिर मुझे किसी टेबल पे चढ़ना पड़ेगा. Just then a strong wind pushed the balloon out of the room. एक जोर की हवा आती है और बलून रूम के बाहर चला जाता है. The balloon flew up and Gappu started going up in the sky. As he looked down, he could see his house. When I ran around in my house, it looked so big, but from here it looks small. How is it? As he went higher, he could see things around his house: the park, the Gurudwara, the railway line, a sweet shop, and Suhasini's house with the big water tank on its roof. वो बोलता है, Who is that on the railway track? Is it that fat cat Monty? Ha ha ha, from here it looks like a big white mouse. This must be the Gurudwara where Amarjit goes every day. वो ऊपर से देख रहा है सारी चीज़, एक बहुत सारी हाइट पे चला गया है और वो वहाँ से देख रहा है चीज़, तो उसको सब छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती है. हम होते हैं, अगर हमने फ्लाइट पे गए या फिर किसी हाई राइज बिल्डिंग में चले जाते हैं और वहाँ से नीचे देखते हैं तो हमें चीज़ें बहुत स्मॉल दिखाई देती है, बट इनफैक्ट हम नीचे जाए तो वही चीज़ हमें बड़ी दिखाई देती है. I did not know where there is a sweet shop here. Yummy. उसको पता नहीं था कि यहाँ पे एक मिठाई की दुकान भी है. Imagine how your classroom looks from above. Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, windows, etc. हमारा क्लासरूम ऊपर से कैसा दिखेगा उसकी ड्राइंग बनानी है.
The balloon went up and up. Gappu kept wondering how big the world is. Now he could see lots of houses, streets, roads and bushes. There are cars and buses looks so small from here, just like toys, and people look like ants. Wow, is that the train looking like a long box from here? नॉर्मल सी चीज़ है, हम जब बहुत दूर चले जाते हैं तो वो दूर की चीज़ें हमें छोटी दिखाई देती है. Suddenly there was a loud sound. Fut! The balloon burst and started falling down, and everything started looking bigger and bigger. Dhup! Gappu fell on the railway track. He ran to save himself from the cruel Monty, who ran after Gappu and the other rats on the railway track. अचानक से बलून फट जाता है. ब्रस्ट मतलब फटना. और वो जो गप्पू माउस था वो अचानक से नीचे गिरने लगता है और जाके गिरता है वो रेलवे ट्रैक पे. और जो बिल्ली उसको पहले वाइट माउस दिखाई दे रही थी छोटा सा, वो अभी उसको डराने लगी, उतनी बड़ी दिख रही है. क्यों? क्योंकि वो उसके पास चला गया है. हम ही होते हैं. चलो स्कूल का गेट अज्यूम करते हैं. तो अगर स्कूल के गेट से हम ग्राउंड का गेट देखेंगे तो वी कैन सी, फिंगर से भी अगर अज्यूम करोगे ना तो इतना छोटा लगता है कि पूरे हाथ में आप कवर अप कर लोगे. लेकिन आप जहाँ पे जैसे जैसे नजदीक जाते जाते हो वैसे वैसे चीज उसका हमें बड़ी दिखाई देती है. When Gappu saw the railway track from the above, it looks like this. ऊपर से कैसे दिख रहा था रेलवे ट्रैक? दो पट्टी है और उसके ऊपर लकड़े के पार्टीशंस लगे हैं. But when he fell on the track, the railway line looked like this. जब हम सामने आ जाते हैं, जो ऊपर से चीज होती है तो हमें ऊपर के सरफेस दिखाई देता है. जब हम उसके सामने चले जाते हैं तो हमें उसके सामने की लुक आती है. हर एक का अलग अलग है. जैसे मैं अगर किसी चीज को ऊपर से देखूंगी, किसी इंसान को देखूंगी तो आई विल सी दी हेयर ओनली, ब्लैक हेयर्स एंड द शोल्डर्स दैट विल बी आई विल बी सीइंग. अगर मैं उसके सामने आ जाती हूँ तो मुझे उसका पूरा फेस और स्ट्रक्चर और सब दिखाई देगा. सेम वे अगर मैं उसे पीछे से देखूंगी तो मैं देख पाऊंगी कि उसकी बैक है, शोल्डर्स है, लेग्स है, बट उसके फेस, माउथ, आईज में देख पाऊंगी नहीं. वैसे ही मैं साइड से देखूं तो उसका एंगल पूरा अलग होगा. एट होम यू कैन डू दिस थिंग. किसी भी चीज को 4 डिफरेंट साइड से आपको 6 डिफरेंट साइड से आपको देखना है. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ मतलब 4 डायरेक्शन से देखना है, 4 साइडों से देखना है, एक ऊपर से देखना है और एक नीचे से देखना है और बताना है कि उसके एंगल्स मतलब जो चेंज हो रहे हैं तो आपको उसके कौन कौन से पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं और कैसे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं. Look these pictures and discuss why things look wide and big and at this end but narrow and small at the other end. जब चीज पास होती है तो हमें वो ब्रॉड दिखाई देती है क्योंकि हम उसके नजदीक है, बट हमारी नजर जैसे जैसे दूर जाती है हमें लग रहा है कि वो चीजें श्रिंक हो रही है, वो पतली हो रही है, एक दूसरे से जुड़ रही है. Match 2 views of the same pose. This is a top view of girl in a yoga pose. Only one of the photos below is the correct match of the same yoga pose. Mark it. ये जो लड़की है उसके नीचे 4 अलग अलग पोज दिए हैं. उसके हिसाब से ये लड़की का जो सही पोज है वो आपको यहाँ पे टिक करना है. Look, the girl is looking at the right side. पहली इमेज में देखेंगे राइट साइड है, यस. सेकेंड में स्ट्रेट है, थर्ड में लेफ्ट है और अगेन लेफ्ट है. और देखो यहाँ पे राइट साइड फेस सबसे फर्स्ट इमेज में दिखाई देगा. देयर आर 2 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम बाउल. ये बाउल सीधा रखा है और दूसरी इमेज में बाउल उल्टे रखे हुए हैं. इन विच फोटोज आर द बाउल अपसाइड डाउन. अपसाइड डाउन मतलब ऊपर की तरफ कौन से हैं. लुक एट द साइड व्यू इन द फोटो 3 टू फाइंड द आंसर. साइड व्यू है यहाँ पे. आपको अगर पता ना चले कि उसमें से कौन सा ऊपर वाला है कौन सा नीचे की तरफ मतलब उल्टा रखा है तो देखिए नीचे इमेज 3 दिया है, दैट इज अ साइड व्यू.
मतलब उसको साइड से देख रहे हैं, टेबल के साइड से। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विथ द टॉप व्यू ऑफ अ पाइप एंड अ फ्यूनल। पाइप का जो मैच, ड्रॉ द लाइन टू मैच द साइड व्यू, साइड में से कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पे करना है। टॉप व्यू ऑफ पाइप। सी हियर, पाइप दिया है, एक मिनट, ये पाइप दिया है यहाँ पे, हाँ ये पाइप है, ये उसका साइड व्यू है, टॉप व्यू है, और उसका साइड व्यू कैसे होगा, ऐसा होगा। फिनल का है और उसका साइड व्यू ऐसे है। ओके, ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ शू फ्रॉम द साइड, टॉप एंड फ्रंट एक्सेट्रा। द पार्क behind Gappu's house. Do you remember the park behind Gappu's house? Here is a bigger picture of that park. Look at it carefully and answer the questions. यहाँ पे पार्क दिया है, उसका टॉप व्यू है, मतलब यहाँ पे स्विंग्स हैं, फाउंटेन्स हैं, दो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे जो इमेजेस दिए हैं वो हमको याद रखना है और उसके हिसाब से हमें आंसर्स देने हैं। यहाँ पे गेट्स भी बने हैं, A, B, C and D. Let us see the questions. Mark the gate nearest to the sweet shop. Sweet shop कहाँ है यहाँ पे? Here is a sweet shop और उसके सबसे नजदीक पड़ने वाला गेट कौन सा है? A. Which gate is the nearest to Gappu's house? गप्पू का हाउस किधर है यहाँ पे? ऐसे होगा, ऐसा होगा। फिनल का है और उसका साइड व्यू ऐसे है। ओके, ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ शू फ्रॉम द साइड, टॉप एंड फ्रंट एक्सेट्रा। द पार्क behind Gappu's house. Do you remember the park behind Gappu's house? Here is a bigger picture of that park. Look at it carefully and answer the questions. यहाँ पे पार्क दिया है, उसका टॉप व्यू है, मतलब यहाँ पे स्विंग्स हैं, फाउंटेन्स हैं, दो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे जो इमेजेस दिए हैं वो हमको याद रखना है और उसके हिसाब से हमें आंसर्स देने हैं। यहाँ पे गेट्स भी बने हैं, A, B, C and D. Let us see the questions. Mark the gate nearest to the sweet shop. Sweet shop कहाँ है यहाँ पे? Here is a sweet shop और उसके सबसे नजदीक पड़ने वाला गेट कौन सा है? A. Which gate is the nearest to Gappu's house? गप्पू का हाउस किधर है यहाँ पे? होपफुली दिस इज गप्पू's हाउस, तो उसके नियरेस्ट गेट आएगा C. If you enter from gate B, the green bench will be to your. अगर हम B से एंटर लेते हैं तो ग्रीन बेंच जो है यहाँ पे वो हमारे कौन से एंड पे आएगा? लेफ्ट एंड पे। यहाँ पे जो दिया है ये है ग्रीन, ये है हमारे लेफ्ट साइड में। हमें हमारा हैंड देखना होता है, हम एंटर करते हैं तो फेस हमारा सीधे की तरफ होता है, तो लेफ्ट में आएगा। When सुहासिनी entered the park, the flower bed was to her right. फ्लावर बेड कहाँ है? ये रहा, और वो उसकी राइट में है। Which gate did she enter from? राइट में, डी से अगर वो एंटर होगी तो कहाँ से होगा वो? यस, डी से अगर वो एंटर होती है तो फ्लावर बेड उसके राइट में आएगा। अगर वो ए से एंटर होती है तो वो उसकी लेफ्ट में जाएगा। सो हियर इज द आंसर डी। विच ऑफ दिस इज द नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी? अगर आप गेट सी से एंटर होते हो तो सबसे नजदीक क्या होगा? बास्केटबॉल कोर्ट, ग्रीन बेंच, फ्लावर बेड और सीसो। सीसो, क्योंकि अगर हम यहां से एंटर होते हैं
यहाँ से एंटर हुए हैं तो सबसे पहले सीसो आता है जो हमारे सबसे नजदीक है। Ismail's home. On the phone, Ismail said Srijata the route to his house from her house. The route map is shown here. यहाँ पे ये चीज़ हम कई सारी जगह पे देखते हैं, गूगल में भी देखते हैं, इनविटेशन कार्ड के पीछे भी लोकेशन वो ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये वो है इमेज। इस्माइल का हाउस यहाँ पे दिया है। यहाँ पे दिया था इस्माइल का हाउस और ये है श्रीजा का हाउस। देखते हैं। दिस इज व्हाट इस्माइल टोल्ड श्रीजा। इस्माइल ने श्रीजा को क्या बोला? फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ एंड देन मेक अ लेफ्ट टर्न। श्रीजा के घर से सीधे जाओ, मिल्क बूथ जाओ और मिल्क बूथ से वहां से आपको लेना है राइट टर्न। तो मिल्क बूथ से आगे देखो, राइट टर्न के लिए एक रास्ता जा रहा है हियर, तो यहां से उसको राइट लेना है। फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज। उसने बोला कि मिल्क बूथ से आगे जाओ और ओवर द ब्रिज। ब्रिज है तो वहां पे ब्रिज के एंगल्स बनाए हैं और लिखा है इट इज अ ब्रिज। गो स्ट्रेट मिल्क बूथ एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न, सॉरी, रीच टू द मिल्क बूथ and take a left from your house, reach the milk booth and take a left turn from the second crossing। यहां से उसके घर से बाहर निकलना है उसको पहले। Here she will get out of her house, she will take a move and she will take a left to the milk booth and will move forward to the bridge। Go straight and then take a first right turn। उसने बोला ब्रिज से स्ट्रेट जाओ और पहले वाला फर्स्ट राइट टर्न ले लो। अबाउट 100 मीटर्स यू विल सी अ बिग पार्क। आगे जाओगे तो आपको एक बड़ा सा पार्क दिखाई देगा। व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू द साइड लैन। माई हाउस इज द फर्स्ट हाउस इन दैट लैन। डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर? कैन यू करेक्ट हिम? यस, ही वेंट समवेयर रॉन्ग। 2 बार हुआ। उसने सबसे पहले बोला फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ एंड टेक अ लेफ्ट टर्न। अगर वो मिल्क बूथ जाती है, ये रहा मिल्क बूथ, और लेफ्ट टर्न लेती है तो इधर चली जाएगी। सो दिस इज अ रॉन्ग वे। राइट वे क्या होगा? फ्रॉम योर हाउस go straight, reach to the milk booth, go straight, leave the first crossroad and from the next crossroad take a right towards the bridge, go straight and from the next first crossroad take a left turn and you will see a park and near to the park you will find Ismail's house. Show where Shrija will reach if she takes the route he told her. She will not reach to the Ismail's house. Write the direction of going from Ismail house to Shrija's house. अगर इस्माइल के घर से श्रीजा के घर जाना है तो क्या रूट रहेगा? Ismail's house, go straight and reach to the park, then go little straight and from the crossroad टेक फर्स्ट राइट। इस्माइल के घर की तरफ से आ रहे हो तो आपका फेस सामने की तरफ है, तो सामने की तरफ आते हुए ये जो ब्रिज है वो आपके राइट पे पड़ेगा। गो स्ट्रेट फ्रॉम द ब्रिज एंड फ्रॉम द क्रॉस रोड टेक अ फर्स्ट लेफ्ट। गो स्ट्रेट एंड लीव वन क्रॉस रोड, रीच टू द मिल्क बूथ एंड फ्रॉम मिल्क बूथ टेक first left and you will reach at Shrija's house. So this was the chapter. I hope you have understood it nicely. One more thing is here, one more exercise here. Ghibli and the big box. Do you remember the Ghibli, the ant in the Math Magic book 3? Well, one day Ghibli saw a box on her way. It looked like this. जब उसने जाते हुए देखा तो उसको सिर्फ एक साइड का पार्ट दिखाई दिया।
Ghibli moved across and turned left. Now she could see the other face of the box. ये हम डाइस के साथ कर सकते हैं. आप घर में खेलते हैं ना डाइस, तो डाइस को अगर सीधा देखोगे आपको एक ही नंबर दिखाई देगा, फिर उसको दूसरे साइड से देखोगे तो दूसरा नंबर दिखाई देगा. Ghibli was confused. What was this box? She climbed up on the cup and tried to see from there. The box looked like this. डाइस होता है, अगर हम उसको हाथ पे भी रखेंगे तो we will see the hardly 3 sides, क्योंकि नीचे का पार्ट हम देख नहीं पाएंगे और आगे के जो पार्ट्स है उसके बैक साइड हम देख नहीं पाएंगे. Can you guess what the box like things was? It was a dice. The numbers on the opposite faces of this box add up to 7. इसका कहने का मतलब है डाइस की अगर सामने वाली साइड है 4 तो उसकी बैक साइड होगी 3, यानी कि आगे का जो नंबर है उसके पीछे के नंबर के साथ जोड़ने पे टोटल होगा 7. In the picture, which number will be at the bottom? Which number will, यहाँ पे पिक्चर है, अगर यहाँ पे 1 लिखा है, 1 लिखा है ना यहाँ पे बॉक्स पे, इट इज 1, तो नीचे कौन सा नंबर होना चाहिए? 6. सो 6 + 1 7. अगर यहाँ पे 4 है तो उसकी बैक साइड पे कौन सा नंबर होना चाहिए? 3. If this is 5 then the back number should be 2. In which which number will be Ghibli see if she again turns left from 5? अगर वो 5 से वापस लेफ्ट टर्न कर रही है, 5 से पीछे जाएगी, ये 5 है उसके पीछे जाएगी तो कौन सा नंबर दिखाई देगा? 3, बिकॉज आगे 4 है तो 4 + 3 7 होगा. What will this box look like if you opened it up? Mark the correct picture. ये बॉक्स अगर आप ओपन करोगे तो कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? ये आपको खुद से एक्टिविटी करनी है ताकि आपको पता चले कि आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं है. होपफुली मुझे तो आंसर पता है बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट. तो आप लोग ट्राई कीजिए कि कौन सा आएगा. Try it out. Draw a shape like this on the thick paper. Cut it out and color the different faces in different colors. Can you use this box to play a game? Yes, we can use a big box to play a dice. ये था हमारा चैप्टर. ये एक्टिविटी हमने किया है तो ये आपको भी घर पे डाइस बनाना है. यूज अ कार्ड पेपर या फिर थिक पेपर कोई भी है, उसको ये जो डिज़ाइन दिया है सेम वे पे कट कीजिए, उसको जॉइन कीजिए, उसके आउटर पार्ट पे मतलब जो बाहर दिख रहा है वहाँ पे कलरफुल डिफरेंट क्राफ्ट पेपर्स आप स्टिक कर सकते हो और बीच में मार्कर्स यूज करके डाइस बना सकते हो. सो ट्राई टू मेक दिस एक्टिविटी and you will find it very interesting. Though this chapter is completely logical, I don't think so I need to give you the answers. ये पूरा explain करने का है और यहाँ पे आप ही को logic लगाना है कि कहाँ पे क्या दिखेगा और कैसे दिखेगा. I will make sure to give you the answers of the practice book as well, but the practice book again will be having the same kind of things. उसको भी हमें देखने में समझने में सिर्फ क्राफ्ट हमें लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा. So I wish and I want every student to do this activity by their own self. खुद से करना है even in the practice book. If any query occurs, kindly let me know. I will submit the answers. Stay at home. Be